Good morning, students. In Science and Technology of class 8th, we are going to start chapter 1, and that is what? Sky vision. Sky vision means what? What we see in the sky. That we are going to study the all things that we see in the sky. है ना? So let's start the chapter. What we see in the sky? At night, when we see the sky, it looks very beautiful. We see lots of numerous of stars in the sky. See, with different type. We see at night. We see different type of stars in the sky, and you also know that some of stars are very bright. Some stars are very bright, and some stars are less, है ना? They are less bright. Some stars are less bright and some stars are very bright. Some stars are look very big and some stars are look very small. Okay. So why some stars are look very big and some stars are look very small, even though they are having the same size, है ना? So stars are having the same size, but they appear, some are appear very bright and big, and some appear very small and less bright. This is because of the distance. Okay, distance means some stars are near to the earth, so they look big and bright. Some stars are very far from the earth, that's why they look small and less bright. कुछ स्टार्स कैसे होते हैं? सन के बहुत पास होते हैं, है ना? इसलिए वो कैसे दिखते हैं? ब्राइट और बिग. बट सम स्टार्स कैसे होते हैं? उनकी साइज कैसी होती है? बिग होती है, बट दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, है ना? उनकी साइज बिग होती है लेकिन वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो कैसे दिखते हैं? स्मॉल और लेस ब्राइट, है ना? वी ऑलरेडी नो दैट इफ some object is near to us, it will look big, and if the big object is very far from us, then it will look very small, है ना? कोई चीज अगर आपके पास रखी होती है तो बहुत बड़ी दिखती है, और वही चीज अगर आपसे बहुत दूर हो जाए तो कैसी दिखेगी? बहुत स्मॉल. बिल्कुल स्टार में भी ऐसे होता है. ये स्टार्स की साइज कभी कभी क्या होती है? सेम होती है. सम स्टार्स आर हैविंग द सेम साइज, है ना? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ओनली some are look very big and bright and some are look very small and less bright. Now see, what is the star? Star is a heavenly body or object that emit light and energy continuously. ठीक है? तो वो objects या heavenly bodies जो light और energy continuously देते हैं, they are called what? Stars. Like sun. Sun is what? Star. है ना? Sun continuously, sun give us what? Energy and light. So sun is a star. Then the nearest star to the earth is what? Sun. है ना? अर्थ के सबसे पास में कौन सा स्टार होता है? सन. इसलिए वो हमें बिग और बहुत ब्राइट दिखता है. सी स्टूडेंट्स, इन द स्पेस, स्पेस में कैसे मेजर करेंगे कि एक स्टार दूसरे स्टार से कितना डिस्टेंस पे है, या है ना? तो कैसे मेजर करते हैं? सो द डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, है ना? लाइट ईयर्स मतलब ये होता है कि एक स्टार से दूसरे तक जाने में ना लाइट कितना टाइम लेती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लाइट ईयर. और इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स मेजर्ड इन स्पेस. See here, the distance travel by light in a year, है ना? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, एट द स्पीड ऑफ 3 लाख, कितनी स्पीड पर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर. मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट, है ना, 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर. Therefore, light year is a unit of distance. It equals to 365 into 24 into 60 into 60 into 3 lakh kilometers, है ना? Okay. So the next is what? See here, the distance of sun, है ना? Sun is about 15 crores away from the earth. Sun earth से कितनी दूरी पे है? 15 crores किलोमीटर.
15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन, किससे? अर्थ से। देन the next is what? After sun, the nearest star to the earth is Alpha Centauri, है ना? सन के बाद दूसरा जो स्टार है जो अर्थ से पास में है वो कौन सा है आपका? अल्फा सेंचुरी, है ना? इट इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितनी दूरी पे है ये? 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना? ये अल्फा सेंचुरी अर्थ से 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। Then, after this, the brightest star, Sirius, this one is Sirius, is about 8.7 light year away from the Earth. Okay, here is the distance from the Sun is. Sirius has the brightest, that is 20 times more. See here, Sirius has a brightness that is 20 times more than the sun. देखो यहाँ पे sun है और यहाँ पे क्या है? Sirius है। ये Sirius जो तो बहुत bright होता है sun से, है ना? कितना time? 20 times. And also a temperature that exceed it by 4000 किलोमीटर। और sun से कितना hot होता है? 4000 किलोमीटर। ये जो Sirius है वो अर्थ से 8.7 लाइट ईयर अवे है। कितना है अर्थ से इसका डिस्टेंस? 8.7 light years. Then see students, we can see countless star in the sky. आपको बहुत सारे countless, आप count कर सकते हो क्या stars को? नहीं ना? We can see the countless stars in the sky, है ना? If we look carefully, we could see a band of star. If we could see carefully, then we see a band. ये दिख रहा है आपको band? देखो ये band दिख रहा है ना जो मैंने आपको highlight कर रही हूँ, band देखो, है ना? We see a band of stars in the sky. Okay, and it starts from the north to south. ये कहाँ जाता है आपका? north to south, है ना? north pole से south pole की तरफ ये जाता है band, ठीक है? And it is called Milky Way. इसको क्या बोलते हैं? Milky Way, है ना? We see the countless star in the sky, and if we see carefully, then we see the band of stars, and which start from the north and goes to south, है ना? And it is called Milky Way. There are many many such constellations of stars and galaxies in the universe. ये Milky Way से मिलके ही क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, ठीक है? अवर सोलार सिस्टम, आपको सोलार सिस्टम मालूम है ना? अवर प्लैनेट्स है ना, 8 प्लैनेट्स. सो दीज प्लैनेट्स सिचुएटेड इन द मिल्की वे, है ना? सन एंड द अदर प्लैनेट्स सिचुएटेड इन द मिल्की वे. नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? अर्थ, है ना? अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है, रोटेट करता है. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना? अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या करता है? घूमता रहता है, ठीक है? And we all know that earth is rotating round its axis from west to east. किस डायरेक्शन में जाता है वो? वेस्ट टू ईस्ट, है ना? अर्थ जो है वो वेस्ट से किसकी तरफ मूव करता है? ईस्ट की तरफ, अपने ही स्पेस पे, अपने ही एक्सिस पे, मतलब एक ही पोजीशन पे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ क्या करता है? मूव करता है, घूमता रहता है, ठीक है? रोटेट करता है. बट स्टार्स क्या करते हैं? इसके अपोजिट, है ना? स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना? अर्थ क्या करता है? वेस्ट से कहाँ जाता है? ईस्ट की तरफ. और स्टार्स इसके अपोजिट मूव करते हैं, कैसे? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ. मतलब अर्थ रोटेट करता है प्लस स्टार्स भी क्या करते हैं? मूव करते हैं ना. बट वन स्टार वी नो दैट इज नोन एज पोल स्टार. एक स्टार हमको पता है, कौन है वो? पोल स्टार, जो कहाँ पे है? नॉर्थ में है और वो मूव नहीं करता, है ना? पोल स्टार इज स्टेशनरी. पोल स्टार डजंट मूव. इट इज नोन एज मोशनलेस, क्योंकि वो मूव नहीं करता. कहाँ पे एक्सेस कर, कहाँ पे है ये? नॉर्थ में. See here, the pole star is situated at the north. It is motionless. Okay. So it is because it is motionless. So from the ancient years, मतलब हमारे जो बहुत 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 पहले से ना, pole star is used to know the direction. Pole star का use किसके लिए करते थे? डायरेक्शन
फाइंड आउट करने के लिए ना, क्योंकि पहले क्या था, कंपास नहीं होता था, डायरेक्शन देखने के लिए कुछ नहीं होता था, तो नाइट में आपको कैसे पता चलेगा कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, पोल स्टार को देखते थे, क्योंकि पोल स्टार इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द नॉर्थ, है ना, क्योंकि पोल स्टार मूव नहीं करता, नॉर्थ में फिक्स है। तो लोग नाइट में पोल स्टार को देखते थे, किसके लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। See here, this is what pole star, which is situated at the north, and it is what, motionless. If we see in the sky, we see different type of shapes of stars. देखो ये जो stars होते हैं, अगर आप देखोगे तो ये stars क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग में एक पर्टिकुलर शेप फॉर्म करते हैं ना। देखो जैसे ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, see the group of stars and they are forming a particular shape, and these groups are known as constellations. ये जो groups बनते हैं, particular shape बनता है, these are known as constellations, and about the constellations we will see tomorrow. Okay.